السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ونستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اصول حدیث کی آج کے کلاس میں ہم لوگ پڑھیں گے علم جرح و تعدیل۔ علم جرح و تعدیل۔ دو لفظ ہیں، ایک ہے جرح، دوسرا ہے تعدیل۔ جرح کے معنی ہیں، اردو میں استعمال کرتے ہیں کسی پر جرح کرنا، یعنی کرٹیسائز کرنا کہ راوی حافظہ کمزور ہے، یادداشت ٹھیک نہیں ہے، اخلاق ٹھیک نہیں ہے، یا دینی اعتبار سے گنہگار ہے، تو کسی کے عیب کو بیان کرنا جرح ہے، اس پر جرح کرنا۔ اس کے اپوزٹ ہے تعدیل، کسی کو اچھا راوی قرار دینا کہ فلاں راوی ہر اعتبار سے صحیح ہے، تعدیل۔ تو ان دونوں کو ملا کر کہا جاتا ہے علم جرح و تعدیل۔ حدیث کی سند میں سب سے پہلے نبی کے بعد صحابہ کا نام آتا ہے۔ صحابہ کے بارے میں یہ مسلم اصول ہے کہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں۔ صحابہ سب کے سب عادل ہیں۔ صحابہ کے بعد تابعی اور ان کے بعد جتنے راوی ہوتے ہیں ان کے تعلق سے معلومات حاصل کرنے کو علم جرح و تعدیل کہا جاتا ہے۔ اگر اچھائیوں کے تعلق سے ہے تو تعدیل۔ تعدیل کا مطلب کسی کو عادل بنانا، تعدیل عادل قرار دینا کہ راوی عادل ہے۔ جرح کا مطلب کسی کو عادل قرار نہیں دینا کہ یہ راوی عادل نہیں ہے، تو یہ گویا کہ نیگیٹو ہے اور یہ پازیٹو ہے۔ تو دیکھیے صحابہ اکرام کی عدالت و ثقاہت مسلم ہے، البتہ تابعین، تبع تابعین اور ان کے بعد کے جو راویان حدیث ہیں ان کی عدالت اور ضبط کا پتہ لگانے، ان پر ثقہ اور ضعیف کا حکم لگانے کے لیے اس علم کی ضرورت پڑتی ہے، جس کے اصولوں کے پیش نظر ان پر حکم لگایا جاتا ہے۔ اس علم کا ایک مختصر سا خاکہ مندرجہ ذیل ہے۔ جرح، پہلا لفظ ہے جرح، جس کے معنی ہیں راویوں کے ایسے عیوب کو بیان کرنا جو ان کی عدالت و ضبط کو ختم کر دے یا عیبدار بنا دے۔ تو جرح کے معنی عیبدار بنانا، اور ان کے پرسنل لائف میں نہیں جانا، صرف ضبط اور عدالت سے تعلق رکھنے والے عیوب بیان کرنا جائز ہے، اور یہ غیبت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، اگر تمہارے پاس کوئی خبر، کوئی فاسق لے کر آئے تو تم اس کی تحقیق کر لو۔ تو تحقیق کر کے لینا یہ غیبت نہیں ہے کہ راوی ضعیف ہے، کمزور ہے، جھوٹ بولتے ہیں، گنہگار ہے، بدعتی ہے، میموری ٹھیک نہیں ہے، یہ بیان کرنا غیبت نہیں ہے، بلکہ جسٹیفائی کرنے کے لیے حدیث کہیں غلط ملط نہ ہو جائے، اس کو بچانے کے لیے اس کو بیان کرنا ضروری ہے۔ تو کسی کے عیب کو بیان کرنا اس وقت جائز ہے جب ایک قوم کو، ایک جماعت کو برائیوں سے بچانا ہو،
अगर ये ना बयान किया जाए तो इतने लोग गुमराही में मुब्तला हो जाएंगे। तो लोगों को बड़े नुकसान से बचाने के लिए, बड़ा फ़ायदा हासिल करने के लिए किसी के आयब को बयान करना जायज़ है। इसको कहते जरा। और तादील का मतलब उसका उल्टा, रावियों को ऐसी सिफत से मुत्तसिफ करना जो उनकी अदालत व ज़ब्त को साबित करें कि ये आदमी आदिल है, ज़ाबित है, ताम ज़ब्त है। इल्म जरा व तादील ऐसा इल्म है जिससे रावियों की जरा व तादील पर मखसूस कलिमात के ज़रिए बहस की जाए। कुछ ख़ास वर्ड्स होते हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। उन कलिमात के मरातिब को मालूम किया जाए कि किसी के ताल्लुक़ से कहा जाए ज़ईफ़, ज़ईफ़ जिद्दा, बहुत ज़ईफ़, और ये जो है घड़ने वाला, वज़ा करने वाला, सय्युल हिफ्ज़, बहुत बैड मेमोरी वाला। जो अल्फाज मुहद्दिसिन ने बनाए हैं उसका क्या मतलब होता है, सबसे ऊंचे कैटेगरी का कौन सा है, सबसे नीचे का कौन सा है, वो आगे हम लोग मालूम करेंगे। इसको पढ़ने का मकसद क्या है? जरो तादील एक दीनी ज़रूरत है जिसका मकसद शरीयत की हिफाजत है, किसी पर आयब लगाना या गीबत करना नहीं है। इसलिए शरीयत ने उसकी इजाज़त दी है। नेज़ जिस तरह से हुकूक और मामलात में गवाहों पर जरा और उनका तज़किया होता है, इसी तरह से हदीस रसूल की मारिफत के लिए जिसमें हर एक की खैरखाही मकसूद होती है, रावियों पर जरा व तादील किया जाता है। जो आदमी किसी रावी पर जरा करे, मैं आपके बारे में कह रहा हूं कि हाँ ये जो है गुनहगार हैं, तो मेरी कंडीशन क्या है, मुझे पहले कैसे होना चाहिए? मैं आपको आदिल करार दे रहा हूं या आपको मैं गैर आदिल करार दे रहा हूं, तो जो आदमी जस्टिफाई करता है उसकी शर्त क्या है? उसके लिए देखिए, जारे और मुअद्दिल यानी जरा करने वाला और तादिल करने वाला, उसकी शर्त क्या? जारे और मुअद्दिल की शर्तें। किसी पर जरा व तादील करना इंतहाई नाजुक और हसास मामला होता है, इसलिए हर कस व नाकस को इसकी इजाज़त नहीं। इसको वही शख्स कर सकता है जो रावियों के बारे में सही और मुकम्मल मालूमात रखता है, जो कोई इमाम वक्त और नाक़िद ज़माना ही कर सकता है, जिनके पास अस्माए रिजाल का ज़बरदस्त इल्म हो। ये उलमाए नक़्द जिनको अइम्माए जरा व तादील कहा जाता है, फ़ी नफ्सी इंतहाई दियानतदार, गैर जानिबदार, मुत्तकी और परहेज़गार हुआ करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी अहले इल्म ने, इस फ़न के मुहद्दिसीन ने कुछ शर्तें मुतय्यन की है। जो आदमी जरा करता है, जस्टिफाई करने वाला, उसको क्या होना चाहिए? उसके लिए 5 शर्तें रखी है। जरा करने वाला, जो आदमी जस्टिफाई करता है, किसी को आदिल या गैर आदिल बनाता है, उसके लिए 5 कंडीशंस। नंबर 1, जरा व तादील करने वाला खुद सिका आदिल रावी हो। खुद पहले वो खुद आदिल रावी और ताम ज़ब्त वाला रावी हो, वो खुद हो। वो खुद ना ठीक नहीं है तो दूसरों के बारे में कलाम नहीं कर सकता। पहली शर्त, किसी पर जरा व तादील करने वाला खुद सिका और आदिल रावी हो। सिका सही, भरोसेमंद। ये जरा करने के लिए सिर्फ रावी कर सकते हैं जरा, या दूसरे लोग? जो करने वाला है वो, उसके लिए 5 शर्तें होना चाहिए। वो भी रावी, नरेटर रावी ना हो, अलबत्ता मुहद्दिसीन में शुमार हो उनका। नंबर 2, रावियों के बारे में मुकम्मल मालूमात रखने वाला हो। रावियों के बारे में मुकम्मल, कंप्लीट नॉलेज हो। ताअस्सुब ना हो, सुस्ती और काहिली करने वाला ना हो, तंग नजरी वाला ना हो, जानिबदारी करने वाला ना हो। किसी की रू रियायत करके या अपने ख़ानदान के लोग हैं तो उनको अच्छा बनाना, नहीं तो दूसरों को, अपने मसलक के लोग हैं तो उसकी जानिबदारी करना, रू रियायत करना, ताअस्सुब में आ जाना, ऐसा नहीं होना चाहिए।
نمبر 3، اسباب جرح و تعدیل کا اچھی طرح سے علم رکھنے والا ہو، جرح و تعدیل کا علم رکھنے والا ہو، اس کے پاس خود اس کا علم ہو۔ دوسرے میں تو یہ ہے کہ اس کو راویوں کے بارے میں مکمل معلومات ہو، راوی یہ اسماء رجال کا علم ہے، بایوگرافی ان کے تعلق سے معلومات ہو، اور یہ جرح و تعدیل کے جو رولز ہیں وہ ان کو معلوم ہونا چاہیے، کب کس پر جرح کرنا، کس کو عادل قرار دینا۔ تھرڈ پوائنٹ ہی شوڈ ناٹ بی پارشل، نہیں، تھرڈ پوائنٹ سیکنڈ میں ہی ہے، معلومات ہو اور جو ہے پارشیلٹی نہ ہو، اس کے پاس سستی اور کاہلی کرنے والا نہ ہو، اور ایک دم نیرو مائنڈڈ نہ ہو، تنگ نظری میں نہ ہو۔ تھرڈ میں اسباب جرح و تعدیل کا علم رکھنے والا ہو۔ فورتھ، عربی زبان اور عرف عام کے تعلق سے اچھی طرح سے معلومات رکھتا ہو، عربی زبان اور عرف عام کے تعلق سے اچھی معلومات رکھتا ہو کہ فلاں علاقے میں عرف عام کیا ہے، اس علاقے میں کیا معروف چیزیں ہیں، تاکہ اس راوی پر جب یہ بولا جائے تو کیا مطلب ہوتا ہے۔ الگ الگ علاقے میں کچھ ہوتا ہے۔ اب عرب والے لوگوں کو کہیں گے کہ غلیظ، غلیظ کا مطلب موٹا، اب اردو والے غلیظ کا مطلب گندا، تو کون سے علاقے میں کیا استعمال ہوتا ہے وہ ان کو معلوم ہونا چاہیے۔ عرف عام، عربی زبان اور عرف عام، لوکل ڈائلیکٹ، ہاں لوکل ڈائلیکٹ ان کو معلوم ہونا چاہیے۔ دوسرے لینگویج نہیں، عربی لینگویج اچھی طرح سے جانتا ہو، اور کیونکہ روایت کرنے والے اکثر و بیشتر عربی ہوتے ہیں، اور یہ فن بھی عربی میں ہے، کتاب شریعت عربی میں ہے، اس لیے اس کی اہمیت ہے۔ شریعت میں عربی زبان کی بڑی اہمیت ہے، لیکن تھوڑی مشکل ہے، اسی لیے لوگ پابندی کے ساتھ سیکھ نہیں پاتے ہیں۔ نمبر 5، حلال و حرام کی معرفت رکھتا ہو، حلال اور حرام کے تعلق سے اچھی طرح سے معلومات رکھتا ہو۔ یہ 5 شرط ہیں۔ جرح اور تعدیل میں ایک بات ہوتی ہے، آپ کسی پر جرح کر رہے ہیں کہ فلاں آدمی عادل نہیں ہے، تو کیوں نہیں ہے بولنا پڑے گا، ریزن کے ساتھ ہی قبول ہوتا ہے، ریزن کے بغیر ایکسپٹ نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کا بھی مسلم اصول ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں فلاں آدمی عادل ہے، بڑا نیک ہے، اچھا ہے، کوئی نہیں پوچھے گا پروف دو، نہیں پوچھتا۔ اگر آپ کہیں کہ فلاں آدمی جھوٹا ہے، کیسے آپ کو معلوم ہوا؟ جھوٹ بولنے کا پروف دو۔ چور ہے، چوری کرنے کا پروف دو۔ فلاں آدمی نیک ہے، نیکی کا پروف نہیں پوچھتا کوئی بھی۔ تو کسی پر جرح کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا ہے کہ جرح اسی وقت قابل قبول ہے کہ آپ نے بتایا کہ فلاں آدمی بھول جاتا ہے، تو آپ کو پروف کرنا، بھولنے کے لیے آپ کو دلیل دینا، سبب بتانا۔ اسے جرح و تعدیل میں سبب بیان کرنا۔ علماء نے اس بات پر اختلاف کیا ہے کہ جرح و تعدیل کب مقبول ہوگا، یا ان کا مفسر ہونا یعنی سبب بیان کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ اس میں 2 باتیں ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں مبہم، مبہم، اور ایک ہے مفسر۔ مبہم جس میں وضاحت نہ ہو، ایکسپلین نہ ہو۔ ایک نے کہا کہ فلاں آدمی ثقہ نہیں ہے، بھائی عادل نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کچھ بولے نہیں ہے، تو اس کو کہیں گے جرح مبہم، جرح مبہم، وداؤٹ پروف اینڈ ریزن۔ ریزن بھی بول سکتے، پروف بھی بول سکتے، ہاں۔ اور مفسر کا تفسیر سے مفسر جرح کیا کہ فلاں آدمی عادل نہیں ہے کیونکہ انہوں نے یہ کیا،
एक्सप्लेन कर दिया है, वजाहत कर दी है, तशरीह कर दी, तफसीर बयान कर दी, तो जरा मुफस्सर, नहीं किया तो जरा मुबहम, बयान किया रीज़न सबब तो जरा मुफस्सर। ऐसे ही तादील में भी होता है कि तादील में एक रावी के बारे में कहा कि फला आदमी आदिल है, क्यों है बयान नहीं किया उन्होंने, तो तादील मुबहम। फला आदमी ताम ज़ब्त है, बहुत स्ट्रांग मेमोरी वाला है, क्योंकि उन्होंने ये याद रखा, प्रूफ दिया, तो तादिल मुफस्सर, तादिल मुफस्सर। अब देखिए इसमें कुछ रूल्स होते हैं। एक रावी, अभी आप उस वक्त देखिए आपको फ़ायदा होगा, एक रावी के बारे में एक मुहद्दिस कहते हैं कि ज़ईफ़ है, एक कहते हैं कि सही है, बहुत होता है ऐसे। ये कैसे भाई, इन्होंने सही कहा, उन्होंने ज़ईफ़ कहा, किसकी बात मानना। अब देखिए जैसे दो हदीस अगर आपस में टकरा जाए, दो हदीसों में क्लाश हो, तो कैसे दूर करना, हमारे पास 4 स्टेप्स हमने इससे पहले मालूम किए कि दोनों को जमा करने की कोशिश करना, दोनों अगर जमा ना हो सके तो उसके बाद उनके नस्ख कैंसलेशन को देखना, नासिक मनसूख है क्या वो देखना है, नासिक मनसूख भी मालूम नहीं हो रहा तो तरजीह भी नहीं तो तवक्कुफ। ऐसे ही रावी के बारे में जो कमेंट्स करते हैं, रावी के बारे में जो कमेंट्स किया गया है उनमें इख्तिलाफ हो रहा है, एक रावी को एक कह रहा है कि सही, एक कह रहा है कि सही नहीं, तब क्या होगा। उसके लिए देखिए 4 उसूल हैं, जरा मुबहम तादील मुबहम, जरा मुबहम। एक आदमी ने जरा किया, एक रावी के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया, तादील किया, वो भी एक्सप्लेन नहीं किया, मुबहम। एक ही रावी के बारे में इख्तिलाफ हो गया, एक ने जरा किया, एक ने तादील की, दोनों ने एक्सप्लेन नहीं किया, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। पॉजिटिव इसमें क्या है, तादील राजिह, प्रेफरेबल, कि इसको मान लिया जाएगा, इसको नहीं माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने रीजन बयान नहीं किया। ये 4 ज़ाबिते हैं, याद रखना, 4 उसूल, ये बहुत अहम है। और इस इल्म में, इस चैप्टर में यही फार्मूला बहुत अहम है। एक रावी, उनके बारे में एक ने कहा कि नहीं भाई सही नहीं, और एक ने कहा कि सही, दोनों ने रीज़न बयान नहीं किया, जरा मुबहम, तादील भी मुबहम, तो ऐसी सूरत में तादील राजे होगी, उसको सही मान लिया जाएगा। उसका उल्टा जरा मुफस्सर, तादील मुफस्सर। एक ही रावी के बारे में एक आदमी ने जरा की, और जरा करते हुए रीज़न बता दिए, उनका झूठ साबित हुआ, मेमोरी पावर कम है साबित कर दिए, वो एक्सप्लेन किए, जरा भी किए और प्रूफ भी दे दिए। और एक आदमी ने तादिल किया, नहीं भाई ये आदिल है, ताम ज़ब्त है, उसके लिए भी उन्होंने प्रूफ दिया, दोनों एक्सप्लेन किए। अब ऐसी सूरत में नेगेटिव को ही देखा जाएगा, जरा राजी होगी। क्योंकि देखिए इसमें क्या इम्कान होता है, हाँ भाई ये आदमी अच्छे हैं, इनकी निगाह में अच्छे नजर आए, ठीक है, लेकिन कभी ये भी हो सकता है, इसका इम्कान है, क्योंकि रीज़न के साथ इन्होंने बताया है, इसीलिए इसमें इनकी जराह को राजे कर दिया जाएगा।
मुहद्दिसीन ने जो ज़ाबिता बनाया है उसी ज़ाबिते के तहत, आपके दिमाग के तहत नहीं है, क्योंकि जरा मुबहम है, वजाहत नहीं किए। अब वजाहत जब नहीं किए, दोनों ने कुछ नहीं किया, तो उस एतबार से इसको राजे करार दिया जाएगा, पॉजिटिव इसको लिया जाएगा। अब जब नेगेटिव चीज़ प्रूफ हो गई है, नेगेटिव चीज़ प्रूफ हो गई है तो प्रूफ्ड है। नेगेटिव और पॉजिटिव जब एक साथ आ जाएं, आदमी अच्छा है लेकिन उसकी बुराई भी साबित हो गई, अच्छाई भी साबित हुई, तो लाजिमी माने में बुराई है उसके अंदर, इसलिए उसी को राजी करार देना। तो ये एक रावी के बारे में बात हो रही है। हाँ, जब ये दोनों क्लाश हो तभी, क्लाश ना तो कोई मसला ही नहीं। एक रावी है, पूरे मुहद्दिसीन ने उसके ऊपर जरा ही किया, मसला ही नहीं है, पूरे ने उसको आदिल करार दिया, मसला ही नहीं है। मसला कब आता? जब दोनों में इख्तिलाफ हो। तीसरा, तादिल और जरा उसके ज़्यादा, मुहद्दिसीन के पास देखिए ज़्यादा और कमी का कोई एतबार नहीं। 10 लोगों ने तादिल किया, एक रावी भी उनके बारे में कहा कि और प्रूफ कर दिए तो वही गए। एक हदीस में 10 रावी है, उसमें से 9 सही है, एक भी रावी ज़ईफ़ निकल गया, हदीस ज़ईफ़। कभी भी उसूल हदीस में अक्सरियत के एतबार नहीं होता। हो सकता है उनसे रिवायत कुछ हदीस सही हो, कुछ गलत, तो वो अलग है। जो पर्टिकुलर हदीस है ना, एक एक हदीस की तहकीक होती है, इनसे रिवायत करदा ये हदीस कैसी है भाई देखना। और एक हदीस है, उसमें एक रावी आ गए, लेकिन उस रावी को कोई दूसरा इस हदीस में सपोर्ट दे रहा है, तब वो सही हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक रावी ज़ईफ़ है तो उसकी पूरी रिवायत ज़ईफ़ है, ऐसा होना कोई ज़रूरी नहीं है। कोई किसी जगह पर उनको सपोर्टर नहीं मिल रहा है तो ज़ईफ़ हो जाएगी, किसी जगह पर सपोर्टर मिल जाए और उनके अंदर कमज़ोरी को दूर कर दिया जाए तो सही हो सकती है। लेकिन जब उनको आदिल नहीं है बोलते, ये अदालत पे भी ये जरा कर सकते हैं जी। तो अगर उनको आदिल नहीं है बोल के प्रूव कर दिया तो इनके सारे हदीसें कैसा ले सकते हैं? वही नहीं लेंगे, इनकी पूरी सारी हदीसें नहीं लेंगे। अब वो अदालत से ताल्लुक़ रखने वाले 5 असबाब हैं, 5 रीज़न्स हैं, उनमें से कौन सा देखना है। अगर उसमें कोई उनको सपोर्ट दे रहा है तब, वरना नहीं। आ गया भाई इस पर जरा कर दिया कि आदिल नहीं है, चौकन्ना हो जाएंगे फ़ौरन। अब उसकी तहकीक होगी, छानबीन होगी, अगर प्रूफ हो तो ही। बहुत रेयर ऐसा होता है, अक्सर जिसको कहा गया ज़ईफ़ तो ज़ईफ़ है तकरीबन, बहुत रेयर उसकी हदीसें किसी और की बुनियाद पर तक़वियत पहुँचती है। तीसरा है जरा मुबहम तादिल मुफस्सर, उल्टा। जरा मुबहम तादिल मुफस्सर। जरा मुबहम है, आपने उस पर जरा किया, रीज़न नहीं बताया। एक आदमी ने तादिल किया, आदिल करार दिया और बाकायदा उनके रीज़न को बयान कर दिया। अब जाहिर सी बात है इसी को प्रेफर किया जाएगा, तादिल राज है। दूसरी कंडीशन ऐसा नहीं हो सकता कि वो शादी में रावी बुरा था, नहीं वैसे लास्ट देखेंगे उसको, एंड ऑफ लाइफ देखेंगे कैसे। मैं आप समझ रहे हैं, अगर कोई स्टार्टिंग में बुरा था और एंड में अच्छा हो गया तो उस वक्त का असर नहीं होता, फिर ऐसे वो सेकंड कंडीशन आएगा। तो एक मरतबा प्रूफ हो गया उनके ताल्लुक से, हम अब मालूम नहीं कर सकते कब उन्होंने तौबा की, कब नहीं किए, कब अच्छे हुए कब बुरे हुए। एक मरतबा प्रूफ हो गया, गलत है गलत है, अब नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो गायबी बातें हैं। उस बेस पर अगर आप आगे बढ़ेंगे बहुत मसला पेचीदा हो जाता है। इसीलिए जो ज़ाहिर मुहद्दिसीन इंसान है, ज़ाहिर के पाबंद है बस। उसका उल्टा जरा मुफस्सर तादिल मुबहम। हाँ, जहाँ पर भी मुफस्सर और मुबहम में टकराव आ जाए तो हमेशा मुफस्सर को ही प्रेफरेंस मिलेगा।
تو یہاں پر جرح راجح. یہ 4 ضابطے 4 اصول یاد رکھیں. خیر یہ تو بہت اس میں ضرورت پڑتی ہے، سرسری طور پر آپ یاد رکھیں. جو لوگ حکم لگاتے ہیں ان کے لیے ضرورت پڑتی ہے. اب آخری بات، جرح اور تعدیل کے کچھ ورڈنگ ہوتی ہے، کچھ سینٹنسز، کچھ ورڈز ہیں، یہ حدیث میں بار بار آتے رہتا ہے، تو ان کو تھوڑا سا آپ کے دماغ میں بٹھانا ہے کہ سب سے اونچے مقام کے تعدیل کے لیے ایک راوی عادل ہے. تعدیل کے کلمات یعنی عادل ہونے کے کلمات، سب سے اونچے مقام پہ اوثق الناس، فلاں راوی لوگوں میں سب سے زیادہ ثقہ، اوثق، بہت ثقہ آدمی ہے. یہ کسی کے بارے میں کہا جائے تو سب سے اونچے مقام کے راوی ہے وہ عادل میں، یعنی آدمی بہت ہی دیندار، متقی، پرہیزگار اور میموری والا ہے. لا يعرف له نذیر، ان کی کوئی مثال نہیں ہے، بے مثال، اردو میں کہیں گے بے مثال. لا يعرف، نہیں جانا جاتا، نہیں معلوم، لہو، ان کے لیے، نذیر، یعنی اتنے پائے کے محدث ہیں، ان کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، کوئی ان کے ٹکر کا نہیں ہے، بے مثال، بے نظیر. اوثق الناس، یہ اوثق سے ثقہ، ثقہ راوی بہت آئے گا. یہ راوی ثقہ ہے، ثقہ راوی ہے، ثقہ ہے. ثقہ مطلب اسی سے اوثق، بہت ثقہ. ثقہ بھروسہ مند، ٹرسٹی. اوثق بہت زیادہ، موسٹ ٹرسٹڈ پرسن، بہت زیادہ. یہ وثقہ، وثقہ یثق الثقہ. دوسرے نمبر پہ ثقہ، ثقاتن، ثبتن، یہ لفظ ایسے الفاظ استعمال ہو کہ آدمی ثقہ ہے، ثبت ہے. اور اس کے لیے ڈبل استعمال ہو. یہ کیا ہے؟ فلاں راوی ثقاتن، ثقاتن، وہ ثقہ ہے، ثقہ ہے. ثبتن، ثبتن، ثبت کے معنی اچھے، مضبوط، اسٹرانگ میموری والا. ایک ہی ورڈ کو دو بار یوز کر لیں تو یہ سیکنڈ نمبر کے ہیں. تھرڈ نمبر پہ صرف ایک مرتبہ یوز ہو، ثقہ راوی ہے، ثقہ یا ثبت. چوتھا ہے صدوقن، بہت سچے ہیں، صدوقن. لا بأس بہ، ان کے بارے میں کوئی حرج نہیں. لا بأس بہ، ان کے بارے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تھرڈ درجے کے ہیں. پانچویں نمبر پہ شیخن وسطن، وسطن درمیانہ، مڈل کلاس کے ہیں. شیخ مڈل کلاس کے ہیں، وسط. جید الحدیث، جید کے معنی اچھا، اچھے حدیث والے ہیں. جید الحدیث، حدیث بیان کرنے میں اچھے ہیں.
गुड, नॉट बैड, ऐसे बोल सकते हैं, नॉट बैड। ये 5वें नंबर पे आता। छठे नंबर पे आता है मकबूल। मकबूल एक्सेप्टेबल है, चलेगा भाई। अरबी में हाँ सेटिस्फैक्टरी, जो खींचतान के पास तक पासिंग मार्क्स लाया है उसको अरबी में बोलते हैं मकबूल। चलो ठीक है, अरबी में मकबूल बोलते हैं, अच्छा लफ्ज़ है। एकदम मार्जिन जो है क्रॉस किया, वहीं आके ठहर गया। तो ये है सबसे जो आउटस्टैंडिंग है उसको कहते हैं अशरफ मुमताज़, अशरफ मुमताज़। उसके बाद जो है एक्सेलेंट मुमताज़, वेरी गुड, जय्यद जिद्दा, गुड जय्यद। और उसके बाद मकबूल। देखिए इसीलिए यहाँ पर जय्यद है, मकबूल। चलेगा, काबिल कबूल, सेटिस्फैक्टरी। अब इसके नीचे जरा, हाँ इसके बाद आएगा जरा के अल्फाज। ये हुए तादील के अल्फाज और कलिमात, तादील के अल्फाज और कलिमात। अब जरा के मरातिब और कलिमात। मरातिबे जराह या जराह के कलिमात। सबसे खतरनाक जराह तो पहले नंबर पे है लय्यनुल हदीस। फला रावी बहुत ही लय्यन, बहुत ही कमज़ोर, इंतहाई कमज़ोर को कहते हैं लय्यन, लय्यनुल हदीस। दूसरे नंबर पे है ज़ईफ़ुन ला युहतज्जु बिही। ज़ईफ़ जो काबिल दलील नहीं है, ला युहतज्जु बिही, जिनसे हुज्जत नहीं ली जाएगी। ज़ईफ़ ला युहतज्जु बिही, जिनसे हुज्जत नहीं पकड़ी जाएगी। अच्छा, इसको दूसरे इसमें बयान कर रहे हैं। ये तादील के जो कलिमात मकबूल है ना, तो मकबूल के बाद लय्यनुल हदीस है। लय्यनुल हदीस, हदीस में सबसे लास्ट कैटेगरी में, कमजोरी के सबसे लास्ट कैटेगरी है ये। हाँ, असेंडिंग डिसेंडिंग बोलते हैं ना। तो पहले जो बयान हुआ है वो असेंडिंग, इसमें यानी सबसे एकदम नीचे से ऊपर गए हम लोग। हाँ, अब ये जो है ऊपर से नीचे आ रहे हैं। हाँ जी जी। तो लय्यनुल हदीस है, ये किसी रावी को कमजोर बताने के सबसे लास्ट है। इससे थोड़ा अच्छा बोलेंगे तो मकबूल। उसके बाद है ज़ईफ़ ला युहतज्जु बिही। तीसरे नंबर पे है ज़ईफ़ुन जिद्दा, बहुत कमजोर, ज़ईफ़ुन जिद्दा। लय्यनुल हदीस तो कम कमजोर है। हाँ, लय्यन वीक, लय्यन का मतलब कमजोर, जैसे नरमी, नरमी, लय्यन के माने नरमी। सेकंड वन ज़ईफ़ुन ला युहतज्जु बिही, ज़ईफ़ है, उनसे दलील नहीं ली जाएगी। हाँ, ज़ईफ़ भी, ज़ईफ़ जिद्दा, बहुत ही कमजोर।
चौथा है मुत्तहम बिल किज़्ब। मुत्तहम बिल किज़्ब, झूठ का इल्ज़ाम जिन पर लग गया। मुत्तहमुन बिल किज़्ब, मुत्तहमुन बिल किज़्ब। पांचवा है कज़्ज़ाब, बड़ा झूठा, बहुत बड़ा झूठा। ये खतरनाकी में बढ़ते जा रहा है, ये कम खतरनाक, उससे थोड़ा खतरनाक, इससे भी खतरनाक, उससे भी खतरनाक, उससे भी खतरनाक। लास्ट में है अकज़बुन नास, अकज़बु नास, लोगों में बहुत बड़ा झूठा है, लोगों का बहुत बड़ा झूठा। रुकनुल किज़्ब, झूठ का पिलर है वो, रुकनुल किज़्ब झूठ का पिलर है। ये सबसे खतरनाक, सबसे वर्स्ट है ये। सारी चीजें अदालत से ही खड़ी है, सबसे दोनों दोनों, अदालत और ज़ब्त दोनों से। अभी आमतौर से अकज़ब, कज़्ज़ाब, मुत्तहम बिल किज़्ब ये सब अदालत से हैं। ज़ईफ़ वगैरह में थोड़ा सा मेमोरी से ताल्लुक़ रखता है। तो ये हो गए इल्म जरा और तादील के कलिमात और मुख्तसर बहुत ही सरसरी तौर पर। अब आगे दिए हैं जरा और तादील की बहुत सारी किताबें अहले इल्म ने लिखी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक जरा और तादील का चैप्टर हो जाता है। अब उसके बाद का जो चैप्टर है ये हदीस पढ़ने और पढ़ाने के आदाब। बस नॉर्मल बातें, इखलास हो, लिल्लाहियत हो, बाअदब रहें, ये सब कॉमन बातें हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। आखिरी एक क्लास होगी अहम कुतुब हदीस, हदीस की किस्में, सुनन किसको बोलते हैं, जामे किसको बोलते हैं, मुस्नद किसको बोलते हैं, और फिर हदीस के अहम किताबें क्या क्या हैं। एक क्लास में इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग उसूल फ़िक़्ह पढ़ेंगे, फिर फ़िक़्ह शुरू करेंगे इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आप कुछ बोल